अगर हाँ. मैंने कोई नया एक्टिव शुरू किया है से सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनामाइड तो कितना टाइम लगता है रिजल्ट्स विजिबल होने में? व्हाई इज स्किन केयर सो मच ऑफ हाइप बिटवीन गर्ल्स एंड नॉट अमंगस्ट बॉयज? ऐसे क्यों लगता है कि स्किन केयर के प्रोडक्ट सारे होते ही गर्ल्स के लिए हैं, बॉयज के लिए इट इज नॉट मेंट टू बी? बिकॉज बॉयज अभी भी स्किन केयर को एज अ स्किन केयर नहीं देखते हैं. उन्होंने आज तक ना क्रीम भी नहीं लगाई होती चेहरे पे. तो उन्हें लगता है कि दिस इज लाइक अ मेकअप. नेल एक्सटेंशंस के बाद तो खैर नेल्स की बैंड ही बच जाती है, अब दिखाने लायक भी नहीं रहते हाथ किसी को. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो इतने ब्रिटल नेल्स हैं कि कभी भी टूट रहे हैं एंड दे नॉट इवन, वेरी वीक. तो इन व्हाट इज द फूड meant for good skin, good hair and good nails? Because skin health starts not only from the outside but it starts from inside. What you are putting in will always be reflected. अब अपनी डाइट में थोड़ा सा कुकुम्बर एंड ये वेजिटेबल्स में ही आ गया सारा, तो कुकुम्बर एंड बीटरूट ये सब चीज़ें अपना डाइट खा रहे हैं, बचपन से कुछ नहीं हो रहा. आपको देखो दिस इज जब तक लाइक मेकअप ना लगाया जाए मुंह पे ग्लो ही नहीं आता. When they enter their teenage, उनकी भी बॉडी सडनली चेंज होती है. They often face the problem of facial hair, कि फेशियल हेयर बढ़ गए हैं, तो उसको लेके वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं. तो उसके लिए क्या? हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू प्लैनेट तावे. आई एम श्वेता बजाज और आज हमारे साथ शो पर हैं डॉक्टर आकृति गुप्ता फ्रॉम जिवीशा क्लिनिक. शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट और आज ये हमारे सारे प्रॉब्लम्स फ्रॉम हेयर फॉल टू ब्रिटल नेल्स टू स्किन का ग्लो जा रहा है सब सॉल्व करने वाली हैं. सो वेलकम टू द शो डॉक्टर आकृति. हाय श्वेता, थैंक यू. सो डॉक्टर आकृति, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आई वांट टू नो आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? चलो let's start with basic skincare routine. My skincare routine is not 10 step or 12 step. Okay. My skincare routine is very basic because I have dry skin, so I focuses main on hydration part. Okay. So I start my morning with like face wash, with a gentle face wash. Then I put on moisturizer, very lightweight moisturizer, and then a sunscreen. I don't put any vitamin C serum. First of all, it doesn't suit my skin. Okay. And I don't put any other serum also. Then at night, I put actives on my skin. So what I do is, first I do face wash, then a serum. Right now, I'm using azelaic acid serum. Okay, because I have some post-acne pigmentation marks on my skin. Okay. And I'm getting some acne breakouts also. Okay. Then retinol twice a week when I Okay. get time. And then under eye cream and a moisturizer. So it's a very simple routine which I'm following these days. ऑल राइट. सो आपने बताया कि आपकी ड्राई स्किन है एंड आप कोई सेरम नहीं यूज़ करते. देर आर मैनी पीपल इंक्लूडिंग मी हु हैव ड्राई स्किन एंड आई हैव दिस नोशन इन माई माइंड दैट हाइलोरॉनिक एसिड इज़ वेरी गुड फॉर माई स्किन क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है. सो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? Hyaluronic acid is a very good serum. See, I don't use it because मैंने skin boosters भी करा रखे हैं, तो my skin is already hydrated. Okay. Plus, I use moisturizers that have hyaluronic acid and centella in it. Okay. So that also keeps my skin moisturized. But hyaluronic acid is a very good serum. If you have very dry skin, you can use it twice a day before moisturizer for moisturizing. Can you suggest some good moisturizers for dry skin? The moisturizers containing ceramides like BioSilk cream. Then other than that, Max Rich U. Okay. It is also a good moisturizer. Then for acne prone skin, we have Acne OC. And other lightweight that's Bioderma CBM acne gel. It's a very good moisturizer. Okay. So there are many moisturizers that you can choose according to the skin type. These are not sponsored. All right, yeah, of course. And अगर ड्राई स्किन है या किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है, कॉम्बिनेशन मीन्स दैट द टी जोन्स आर ऑयली एंड द रेस्ट ऑफ द फेस इज ड्राई एंड अगर ऑयली स्किन है तो इनके लिए फेस वॉश कैसे सेपरेटली चूज़ करें?
There is no need to choose separate face wash for this because you cannot use a face wash ना कि आप इधर अलग करेंगे हाँ, and इधर अलग exactly. करेंगे. तो you have to choose a single face wash. If your face is too oily, your T-zone is too oily, then use a acne cleanser only, like containing mild salicylic acid. Face washes and cleansers contain mild salicylic acid. Okay. Then you can use a moisturizer that can moisturize your skin well. Okay. So since you mentioned that in your night care routine आप azelaic acid use करते हैं, so that is basically for acne prone skin or for the acne marks? That is mainly for the pigmentation, azelaic acid, and plus it has benefits that it control acne also, and it gives a very good glow also and prevents further breakouts. All right. तो कितनी बार हम वीक में azelaic acid use कर सकते हैं? You can use it daily or alternate day depending on your skin. Requirement. And then we need to moisturize after that? Yeah. Every serum you need to moisturize after that. Okay. What about pores? Pores को कैसे treat करें? देखो There are a lot of open pores, हाँ, especially after a certain age, cheeks पे बहुत visible होते हैं. खासकर जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है, उनके पोर्स बहुत विजिबल होते हैं. तो पोर्स को ट्रीट हम लाइक देखो क्लोज नहीं कर सकते कि यू कैन नॉट गेट अ 100% प्लेन स्मूथ सरफेस नहीं मिल सकता. You can only minimize them. Then you can add niacinamide serum or salicylic acid face washes in your skin regime, and that will definitely help in the long run. But you have to be very patient while doing that, because if you are expecting results from skincare, you have to be consistent and patient. Problem is people lose their patience. वो 3 दिन में result expect करते हैं, वो नहीं आ सकता. So usually अगर मैंने कोई नया एक्टिव शुरू किया है, से सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनामाइड, तो कितना टाइम लगता है रिजल्ट्स विजिबल होने में? मिनिमम 4 to 6 weeks. You have to wait. 1 month, 4 weeks तो उसको आपको स्किन पे सेटल होने में ही लगता है. Then it will start showing the result. तो मिनिमम टाइम इज 4 to 6 weeks. You have to wait for that time. उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि लाइक मॉर्निंग एंड नाइट स्किन केयर रूटीन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो लोग जो बहुत लेजी हो जाते हैं स्पेशली नाइट स्किन केयर रूटीन के लिए, तो उनके लिए आप क्या सॉल्यूशन बताएंगे? If you cannot do a night skincare routine, वैसे night skincare routine is very important because आपकी जब आप सोते हो तो आपकी स्किन के पास 6 to 8 hours होता है वो रीजनरेशन टाइम. तो अगर आप उस टाइम को गवा देते हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर योर स्किन, है ना, बिकॉज मॉर्निंग में हम पोल्यूशन में रहते हैं पूरा टाइम, सन रहता है बाहर, तो आपका स्किन डैमेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो यूटिलाइज दैट टाइम. डू नॉट फॉरगेट योर नाइट स्किन केयर रूटीन. बट जो बिल्कुल नहीं फॉलो कर सकते, एटलीस्ट एक फेस वॉश और एक मॉइस्चराइजर, पुट दैट ऑन. 2 basics. हाँ, 2 basics. If you don't want to because put serum on daily, although sometimes अगर मैं अपना personally बोलूँ, I really enjoy the night skincare routine, but there are days when I'm extremely tired or lazy and I just don't want to do it, and then there is this guilt also, and it shows also on the skin the next day or in the next week. It is visible also. अगर consistently 2-3 दिन नहीं किया तो वो visible भी होता है that your skin is being neglected. तो ठीक है, मतलब fair enough that at least one face wash, because आप सारा दिन exposure रहता है आपका pollution में, and a moisturizer is fair enough. I think that's very quick. मतलब इतना तो bare minimum. इतना तो आप कर सकते हो. I've taught my husband also to do that. इतना तो वो कर ही लेते हैं. This I wanted to discuss. So why is skincare so much of hype between girls and not amongst boys? ऐसे क्यों लगता है कि skincare के प्रोडक्ट सारे होते ही गर्ल्स के लिए हैं, बॉयज के लिए it is not meant to be? बिकॉज बॉयज अभी भी स्किन केयर को एज अ स्किन केयर नहीं देखते हैं. उन्होंने आज तक ना क्रीम भी नहीं लगाई होती चेहरे पे, तो उन्हें लगता है कि दिस इज लाइक अ मेकअप. हाँ, तो दे थिंक कि गर्ल्स अगर स्किन केयर लाइक सिरम्स लगा रही हैं तो वो अपना मेकअप वाला टाइम कर रही हैं, एंड दैट इज नॉट फॉर द बॉयज. एंड उनके रिएक्शंस भी बड़े ऐसे होते हैं दैट ओ माय गॉड व्हाट आर यू पुटिंग ऑन योर फेस, एंड दे आर सो शॉक्ड एंड समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लगाना है. बट बिलीव मी, आई हैव सो मेनी मेन clients and patients in my OPD. Once they start doing skincare, they don't forget like girls. Okay, is it? Yeah. Even at my home also I have seen, मतलब मेरे husband मेरे से ज़्यादा skincare करते हैं अब. तो मतलब serums रखे हैं, कुछ expire करने वाले हैं, तो वो खुद ही लगा लेते हैं कि हाँ.
ठीक है, पैसे वेस्ट नहीं हो, मैं लगा हाँ, लेता हूँ. पैसे वेस्ट नहीं हो, अगर तुम नहीं लगा रही हो तो मैं लगा लेता हूँ. बट ही डज हिज नाइट केयर रूटीन रेगुलरली. I think my husband, he finds it very complicated कि क्या, how do you remember all these things and हाँ. what is the need? नहीं, बट मतलब जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो अगर एक बार उन्होंने स्किन केयर स्टार्ट कर दी, सो दे टेक इट वेरी सीरियसली एंड वो करते हैं. What is this hype about Korean products? कि कोरियन प्रोडक्ट से आपका ग्लास स्किन मिलता है, या उसमें बहुत सारे what do you call, there are ceramides and then it is rice water based. So suddenly I think especially after COVID में इतना सबने के ड्रामा देखा, हाँ. और उसके बाद से कोरियन प्रोडक्ट ज़्यादा ही हाइप पे आ गए because of Instagram reels and everything. So are the Korean products actually better than any other products or is it just overhyped? कोरियन प्रोडक्ट्स आर वेरी लाइट वेट और उनका टेक्सचर इतना अच्छा होता है Okay. कि दे व्हेन यू अप्लाई देम आपका स्किन आपको बहुत सूदिंग और Soft बहुत लगता है. टेक्सचरी एंड सॉफ्टनेस लगता है. Okay. हाँ, टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है. तो दैट्स वाई वो धीरे धीरे जब लोगों ने उन्हें यूज़ करना स्टार्ट किया तो दे फाउंड इट वेरी गुड. ओके. Okay. तो एंड पीपल रियली थिंक, वी हैव सीन कोरियन ड्रामास, तो उनमें उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा मेकअप होता है. दे इफ़ यू गो टू कोरिया पीपल डोंट लुक लाइक दैट. अच्छा. है ना. तो वो सिर्फ वो ड्रामा में अगर हमें दिख रहे हैं ना, उनके लाइक फेस पे बहुत ज़्यादा मेकअप है. वो लोग बहुत ज़्यादा सर्जरीज कराते हैं. Okay. वहाँ पे फेस लिफ्ट सर्जरीज एंड दीज मतलब एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स ज़्यादा हैं उन लोगों पे rather than the products. या Okay. एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स भी हैं एंड प्रोडक्ट्स के पीछे भी वो लोग थोड़ा क्रेजी हैं. अच्छा. दे आर लाइक कि उनको स्किन केयर करना ही है. Okay. तो लोगों ने जब उनकी स्किन देखी ना, एंड प्लस दे आर ब्लेस्ड विद देयर जेनेटिक्स, वी आर नॉट ब्लेस्ड दैट मच. तो हमारे ऊपर वो हाँ. प्रोडक्ट्स काम करते हैं एक्चुअली या नहीं? टू एन एक्सटेंट दे वर्क, बट अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंसर्न आपको देखना चाहिए, क्योंकि उनकी स्किन और हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. तो ऑलवेज लुक फॉर द इंग्रेडिएंट्स. अगर उनका बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन नहीं होता तो ऑयली स्किन के लिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स तो कोरियन प्रोडक्ट्स आई थिंक नॉट द बेस्ट चॉइस. तो आप थोड़ा सा इंडियन ब्रांड्स में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है. बट हाँ, Okay. फॉर ड्राई स्किन एंड फॉर ग्लोई स्किन देयर प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग. They are. हाँ. Alright. And फूड का क्या इनपुट रहता है हमारे स्किन को हेल्दी और ग्लोई बनाने में, ऑल्सो फॉर द हेयर केयर एंड ऑल्सो नेल्स, बिकॉज वी ऑफन नेल एक्सटेंशंस के बाद तो खैर नेल्स की बैंड ही बच जाती है, आप दिखाने लायक भी नहीं रहते हाथ किसी को. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो इतने ब्रिटल नेल्स हैं कि कभी भी टूट रहे हैं एंड दे नॉट इवन, वेरी वीक. तो इन what is the food meant for good skin, good hair and good nails? देखो, स्किन हेल्थ स्टार्ट्स नॉट ओनली फ्रॉम द आउटसाइड बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड. व्हाट यू आर पुटिंग इन विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्टेड. Okay. ओके. तो अगर फूड्स की बात करें तो सिंपल पहले हाई प्रोटीन डाइट से स्टार्ट करते हैं कि आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अभी भी बहुत सारे इंडियंस वेजिटेरियन हैं, वो नॉनवेज ज़्यादा नहीं खाते हैं. सो प्रोटीन उनकी डाइट में इतना एडिक्वेट नहीं होता. Correct. ठीक है ना. तो प्रोटीन डाइट आप ज़रूर लें, विच इंक्लूड्स आपका सोयाबीन, पनीर. अगर एग खाते हो तो एग्स आर अ गुड चॉइस. देन सोयाबीन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. देन अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए सबसे पहले, जिनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मल्टीविटामिन्स होते हैं. Okay. लाइक बेरीज हो गई, क्रैनबेरीज, स्ट्रॉबेरीज वगैरह. उसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं. Okay. देन कम सीड्स, आपके फ्लैक्स सीड्स, आपके पम्पकिन सीड्स. ये आपके हेयर में दे आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ऑल्सो प्रोटीन. तो ये आपके हेयर पे बहुत अच्छा काम करते हैं, प्लस आपका स्किन भी रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. Okay. देन कम्स आपका जिंक. जिंक हो गया आपका डाइट में. आयरन. What is the source of zinc? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. Okay. हाँ, तो वो आप अपना डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें. देन लेग्यूम्स हो गए, दाल वगैरह फॉर प्रोटीन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी डाइट में थोड़ा सा कुकुम्बर एंड ये वेजिटेबल्स में ही आ गया सारा, तो कुकुम्बर एंड बीटरूट, ये सब चीज़ें अपना डाइट खा रहे हैं, बचपन से कुछ नहीं हो रहा. आपको देखो, दिस इज जब तक लाइक मेकअप ना लगाया जाए मुंह पे ग्लो ही नहीं आता. दैट इज मोर ऑफ कि आप अपना डाइट
बैलेंस डाइट ले रहे हो, अच्छे से ले रहे हो, देन यू वर्क आउट प्रॉपरली, हैव हाँ, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, वो नहीं हो हाँ रहा। हाँ, तो वो चीज़ें बैलेंस करती हैं। अदरवाइज चाहे आप कितना प्रोडक्ट्स लगा लो, कितना खर्चा कर लो, वो ग्लो तब भी नहीं आएगा जब तक ये चीज़ें नहीं बैलेंस होंगी। All right. Okay. Can you suggest some good sunscreens in the market? सनस्क्रीन्स मेनली जो समर में लगाते हैं ना, दोज आर जेल बेस्ड सनस्क्रीन्स आर गुड, जो Okay. ऑयली स्किन के लिए अच्छी होती हैं। ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लूइडी सनस्क्रीन्स जो होती हैं, जो लाइट वेट सनस्क्रीन्स होती हैं, जैसे रिलास्टल सनस्क्रीन इज गुड, देन यूसेरिन sunscreen is good. Apart from that, I'm finding that UV Dukes Hydra sunscreen, it is very nice. Then तो ये सब ऑयली स्किन के लिए ये है? सब ऑयली स्किन के लिए अच्छा। है, हाँ, मतलब दीज आर फॉर नॉर्मल स्किन ऑल्सो, कि अगर आपको And एक are they very लाइट वेट, expensive? हाँ, या सम आर एक्सपेंसिव, सम आर budget Nominal friendly, हाँ, range, budget friendly. Like Eucerin and Relastil is very expensive, but UV Dukes Hydra is normal. Then Photon Hydra is a budget range, and apart from that, if you are using the gel sunscreen, then silicone based sunscreens like Solar Safe, Sunstop Gold, and this Ecran Soft sunscreen, these are also good. Then Heliocare is also good, that have a range of sunscreen. In that I like the tinted one in UV Dukes, that is a tinted plus fluidy sunscreen. It's a very good, that gives a foundation coverage also if you want in your daily Okay. life. Okay. तो इसमें से ड्राई स्किन के कौन से हैं? Dry skin के लिए hydration based sunscreen like Photon Hydra, then UV Dukes Hydra, these are dry skin. For dry skin. Yeah. So next I would like to talk about teenage. So boys and girls when they enter their teenage, तो obviously बहुत hormonal changes होते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी में भी बहुत चेंजेस हैं, स्पेशली फेस पे बहुत चेंजेस आते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट बॉयज़ फर्स्ट, ओके, बॉयज़ के एक्नेस बहुत आते हैं फोरहेड पे स्पेशली या चीक्स पे, तो उसको क्या प्रिवेंट कर सकते हैं या उसको कम कैसे करें, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? देखो, सबसे पहले ना टीनेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही एक्ने है, क्योंकि उनका स्किन सडनली बहुत ऑयली हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर हॉर्मोन्स. तो टीनेज में देखो बहुत ज़्यादा एक्टिव्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओनली दे नीड अ गुड फेस वॉश, देयर मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन. वो भी सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेज एंड मॉइस्चराइजर वो यूज़ कर सकते हैं टू गेट द ऑयल कंट्रोल. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डाइट, क्योंकि आजकल स्विगी जोमेटो बहुत ज़्यादा हो गया है उनके, इट्स वेरी कॉमन कि वो लोग बाहर ज़्यादा खाते हैं, घर का खाना कम खाते हैं. तो अगर वो डाइट अच्छे से मेंटेन करेंगे सो दे वोंट फेस एनी प्रॉब्लम. फिर भी अगर किसी को जैसे पस वाले एक्ने हो रहे हैं या फिर सिस्टिक एक्ने हो रहे हैं, तो दे नीड डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन. ओके, बट क्या ड्राई स्किन पे भी एक्ने होते हैं? बिकॉज एज आई सेड दैट आई हैव अ ड्राई स्किन एंड बट यूजुअली ये होता है कि एक्ने इज़ फॉर ऑयली स्किन, मतलब अगर ऑयली स्किन है तो एक्ने हो रहे हैं. आई वेरी ऑफन फेस दिस इशू ऑफ एक्ने. सो ड्राई स्किन के एक्ने, इसका कैसे ट्रीटमेंट है? ड्राई स्किन पे एक्ने होते हैं बट बहुत कम होते हैं. वो मेनली गर्ल्स में तो मेनली हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर इनकरेक्ट स्किन प्रोडक्ट्स अगर हम लगा रहे हैं, अगर हम नाइट में फेस वॉश नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ द डैमेज टू द स्किन, तो वो उस वजह से होते हैं. दे आर वेरी इजी टू टैकल. मतलब आप एक रेटिनॉइड लगा सकते हो नाइट में एंड देन यू कंटिन्यू विद योर स्किन केयर. और अगर आपको लग रहा है आपका स्किन केयर आपको सूट नहीं कर रहा, देन यू कैन टॉक टू अ डर्मेट. Okay, and what about girls when they enter their teenage? उनकी भी body suddenly change होती है and they often face the problem of facial hair, कि facial hair बढ़ गए हैं, तो उसको लेके वो बहुत conscious हो जाती हैं. तो उसके लिए क्या solution है? देखो, when they enter the teenage ना, apart from facial hair, उनकी body hairs को लेके आजकल girls बहुत ज़्यादा possessive रहती है. Correct. And many mothers with their kids, they come to my OPD and they ask कि मैम इसको कैसे हम क्लीन करें, बिकॉज अभी उनका राइट एज भी नहीं है फॉर लेज़र, है ना, एंड वैक्सिंग भी नहीं कराना चाहते. इट्स टू अर्ली फॉर देम, प्लस दे आर डैमेजिंग टू द स्किन. ठीक है, तो
what I tell them कि अगर आपका बच्चा इतना कॉन्शियस है अपने आप को लेके, if they are old enough to understand कि उनकी बॉडी इमेज खराब हो रही है when they are going out, if they don't feel like going out, तो प्लीज उनको ट्रिमिंग इज द बेस्ट ऑप्शन एट दैट एज, बिकॉज ट्रिमिंग आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं करती, प्लस उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है. एंड रेजर भी कर सकते हैं, बट रेजर के साथ कभी कभी इश्यूज आते हैं कि उनको हेयर फॉलिकल्स के इन्फेक्शंस हो जाते हैं व्हेन दे रेजर. प्लस वो इतने छोटे हैं कि उन्हें रेजर करना भी नहीं आता ठीक से, बट दे कैन डू रेजर और ट्रिमर. तो trimming is the best option and the second best option is razor. What is the right age to start waxing for girls? Waxing as such we don't advise, but we advise after 16 only. And After 16. even laser hair reduction we say after 16. That depends on person to person. मतलब डॉक्टर्स पे भी डिपेंड करता है. As early as 13 भी लोग स्टार्ट करते हैं, बट आई प्रेफर कि 16 के बाद हम लेजर हेयर रिडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. Okay, and what about boys? उनका 13, 12, 13, 14 की एज में they also start getting their facial hair which is uneven. तो and वो बहुत odd stage होता है that the face is not looking good at all. So what is the right age to start trimming on face? बट वी मेड देम अंडरस्टैंड कि उसको आने दो अभी, बिकॉज ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करनी चाहिए. Exactly, हाँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो काउंसलिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि दीज चेंजेस आर वेरी नॉर्मल इवन फॉर गर्ल्स एज वेल एज फॉर बॉयज, बट स्टिल दे हैव सम कंसर्न्स, देन ट्रिमर इज द बेस्ट ऑप्शन. Boys को भी they should wait till 16? Yeah, they should wait. They should wait for their beard to grow or something. To grow, हाँ. All right. And अभी आपने mention किया था the retinol thing. So retinol के लिए what is the right age? Like because retinol का there is this mindset that it is to avoid aging marks like wrinkles and all. तो उसके लिए right age क्या है? After 20. After 20. After 20 you should start retinol. Isn't it too early? No. Because usually होता है कि अच्छा 35, 40 के आसपास. नहीं. As early as 20 or 25 you can start retinol. Retinol 20 के बाद mainly उनको बोलते हैं जिनकी ज़्यादा acne prone skin होती है. So that helps in controlling the acne as well. बस वही चीज़ होता है कि during pregnancy you cannot use retinol. Okay. That's a very X sign and red flag. और बाकी तो आफ्टर 20 यू कैन स्टार्ट योर रेटिनॉल. मतलब टीनेज से निकले और रेटिनॉल शुरू कर दें. यू कैन स्टार्ट विद, ऐसा कुछ नहीं है. द अर्लियर द बेटर. जितना आप अर्ली स्टार्ट करते हो उतना जल्दी आपके एजिंग साइंस अर्ली प्रिवेंट करते हो. ओके. और ये भी बहुत कॉमनली सुनने में आता है, इनफैक्ट ऑन वेरियस डर्मैट पेजेस ऑल्सो आई हैव हर्ड कि जो फेस वॉश है दैट इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग. वो आपके फेस को और स्पॉइल कर रही है एंड यू शुड यूज़ ओनली होममेड रेमेडीज टू वॉश योर फेस. सो इज़ इट ट्रू? नहीं, आई डोंट थिंक सो एनी डर्मैट कि फेस वॉश से आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, आपकी स्किन और ज़्यादा डल ड्राई हो जाती है. सो यू शुड नॉट use a face wash. It should be avoided. It's the worst thing you can put on your face. There are many pages or many dermats who endorse this. No, they must not be dermats. They are random skin influencers. Okay. Or so-called cosmetologists or something like that. Because कोई भी dermat ये नहीं कहेगा face wash नहीं करना. Face wash देखो, होममेड फेस वॉशेस मतलब जो आप बनाते हो और जो एक इंग्रेडिएंट बेस्ड फेस वॉश होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है. सो मान लो अगर हम जैसे लेमन या फिर टमाटो ही ले लें, अगर हम उसको फेस पे सीधा बस ऐसे रब करें एंड देन पानी से वॉश करें, दैट वोंट गिव आवर फेस, क्लीन नहीं करेगा वो आपको, है ना. इवन बेसन से बहुत लोग करते हैं या मुल्तानी मिट्टी से, तो वो क्लीन नहीं होता आपका फेस. ठीक है. फेस वॉशेस में सर्टेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइक सल्फेट्स भी होते हैं एंड देयर आर मेनी जेंटल क्लेंजर्स एज वेल जो आपकी स्किन के पोर्स को डीपली क्लीन करता है. सो वो एक बहुत साइंस बैक्ड प्रोडक्ट होता है जिसका काम ही है क्लीन करना, बट उनका काम कुछ और है. प्लीज किचन का काम किचन में रहने दें एंड इनको काम अपना करने दें. Okay. And since you said that face washes are good and they're not harmful and science-based products हैं, so इसी से मेरा next question related है कि आजकल market में इतने brands हैं. Some of them are celebrity brands. There are many Bollywood actresses जो अपने brands के साथ they have come up. And on the other side there are dermatologist approved brands. So इनमें क्या difference है?
देखो सेलिब्रिटी ब्रांड्स और डोमैट ब्रांड्स में आई जस्ट वांट टू हाईलाइट, सेलिब्रिटी को सेल करना बहुत अच्छे से आता है, प्लस उनका फेस देख के लोग सेल मतलब हो जाता है, मार्केट वैल्यू इजीली मिल जाती सो है। दे सेल ट्रेंड्स प्लस देयर फेस वैल्यू। दैट इज, मैं ये नहीं कह रही कि सेलिब्रिटी ब्रांड्स बेकार भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं, दैट डिपेंड्स कि आपका फॉर्मुलेशन कैसा है, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट बैक ब्रांड्स हमेशा ही अच्छे होते हैं, मतलब मोस्टली अच्छे होते हैं, ये नहीं है कि वो भी खराब नहीं होते, वो भी एक दो तो खराब होते ही हैं, बट उनमें एक प्रॉपर रिसर्च, एक प्रॉपर साइंस, प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स की समझ होती है, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। तो वो तो पब्लिक को ही डिसाइड करना है कि व्हाट दे वांट टू पुट ऑन, बिकॉज आप किसी सेलिब्रिटी का ब्रांड लगा के उनके जैसा स्किन नहीं पा सकते, विच इज ट्रू, बिकॉज उनकी स्किन भी अपने प्रोडक्ट से नहीं हुई हाँ, है। It is more of aesthetic treatments and fillers and botox and everything. Exactly. And nobody is like Katrina Kaif कि वो अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं and then वो खुद यूज कर रहे हैं, हाँ. so ऐसा भी नहीं है, because I like Katrina because of that only, क्योंकि वो खुद अपने प्रोडक्ट्स को खुद पर यूज करती है, so that is the thing कि पीपल शुड इंस्पायर अप टू कि हाँ, अगर आप कुछ बना रहे हो तो पहले अपने ऊपर टेस्टिंग भी करो। हाँ, but even for that matter, even Kriti Senon is shown using her own products. वो Hyphen के वो lip glosses लेके बहुत मीडिया के सामने आ रही होती है। If you see their ingredients, इतने ज़्यादा well balanced नहीं है। अच्छा। हाँ, तो I don't have, मतलब कुछ products अच्छे हैं उनके, कुछ products are not up to the mark. Basically, it is up to the person कि उनको क्या चाहिए. That's the personal choice. Mainly look for the ingredients, what you are using on your face, and if it is suiting to your skin. ऐसा नहीं है सारे प्रोडक्ट्स बेकार हैं उनके कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स अप टू द मार्क नहीं है, सो दैट डिपेंड्स। टीनेज में यूजुअली इन गर्ल्स एंड बॉयज स्किन पे वाइट पैचेस हो जाते हैं, समटाइम्स ऑन द फेस, ऑन द नेक, नॉट वेरी प्रोमिनेंट बट आते हैं, एंड ऑल्सो आई लैशेज आपकी जो है वो थोड़ी सी फॉल करती हैं, तो इज दिस नॉर्मल? क्या वो अपने आप रिकवर हो जाता है या उसके लिए कुछ डॉक्टर से मेडिसिन लेनी पड़ती है? देखो, रिगार्डिंग द वाइट स्पॉट्स, इट कुड बी 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। अगर बहुत माइल्ड वाइट स्पॉट्स है, जैसे हम सीप बोलते हैं जिनको, कि फेस पर आ रहे हैं छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स, तो वो तो ड्राइनेस के कारण होते हैं, तो दे कैन बी ट्रीटेड विद अ मॉइस्चराइजर। प्लस अगर उनको कुछ स्पॉट्स आते हैं लाइक चेस्ट पे एंड बैक पे, दैट कुड बी अ फंगल इन्फेक्शन, सो दैट नीड्स अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। और उसके अलावा फिर विटिलाइगो भी होता है, विच इज़ अ वाइट स्पॉट, मतलब सफ़ेद दाग जिसे हम बोलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, कुछ भी डाउट है, तो प्लीज़ गो टू अ डॉमैट एंड टेक कंसल्टेशन। डू नॉट ट्राई अपने आप कुछ भी उल्टा सीधा, कि इनको ट्रीट करने के चक्कर में बहुत सारे नेचुरल ट्रीटमेंट्स लोग करने लग जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर देम, विच मे बी यू नो विच मे कम विद कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, एंड रिगार्डिंग दैट eyelash फॉलिंग, वो नॉर्मल भी हो सकता है, और अकॉर्डिंग टू लाइक एज के इश्यूज की वजह से भी, लाइक हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, प्लस थायराइड इश्यूज कुड बी देयर, सो बेटर go to a doctor, get yourself checked and if this is normal or not. और बहुत कॉमनली ऐसा माइंडसेट भी देखा जाता है कि जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे ही होंगे, या वो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देंगे, और जो प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली थोड़े नॉमिनल रेंज में हैं या बजट फ्रेंडली हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। सो इज इट अ मिथ और इज इट ट्रूथ? इट इज़ अ मिथ। पहली बात तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स बताती हूँ जिसपे आप अपने पैसे बचा सकते हो। देखो, फेस वॉश और क्लेंजर्स पे डोंट ओवर स्पेंड ऑन देम, ठीक है। आप एक नॉर्मल क्लेंजर और फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो, बजट फ्रेंडली, अच्छा, ठीक है, क्योंकि उस पर ओवर स्पेंड करने से कुछ होगा नहीं। फेस वॉश और क्लेंजर का काम है फेस को क्लीन करना, ठीक है, दैट इज़ हार्डली 30 seconds to 1 minute ऑन योर फेस, ठीक है, तो ओवर स्पेंड मत करिए। देन मॉइस्चराइजर ऑल्सो यू कैन गेट द बेसिक मॉइस्चराइजर्स, अ गुड मॉइस्चराइजर्स लाइक नॉन कोमेटोजेनिक मॉइस्चराइजर्स, तो वो आपको 500 to 1000 की रेंज में बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर्स मिल जाते हैं मार्केट में। देन कम सिरम्स। अगर आपको स्पेंड करना है तो स्पेंड ऑन योर सिरम्स, बिकॉज सिरम्स आर वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट ऑल्सो, एंड एक्सपेंसिव सिरम्स ऑब्वियसली उनमें फॉर्मुलेशंस होते हैं, उनको स्टेबिलिटी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब लोग विटामिन सी को लेमन से कंपेयर करते हैं, या एक 2200 का विटामिन सी और एक 500 रुपीज़ का विटामिन सी, यू कैन नॉट कंपेयर देम बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी इशू,
ठीक है ना. अगर वो 2200 का है तो ऑब्वियसली उसमें उन्होंने कुछ डाला है टू मेक इट स्टेबल, दैट इज ऑब्वियसली मोर एक्सपेंसिव. Okay. सो इफ यू वांट टू स्पेंड योर मनी, स्पेंड ऑन serums, spend on your sunscreen is also fine. Okay. आप एक मीडियम रेंज सनस्क्रीन ले सकते हो, नॉट टू Expensive. हाँ, नॉट टू एक्सपेंसिव, नॉट टू बजट फ्रेंडली. मतलब Okay. आपके हाँ. हाँ आपके रेंज में जितना आए आप सनस्क्रीन पे स्पेंड कर सकते हो. बट मॉइस्चराइजर्स एंड क्लेंजर्स आप बेसिक भी लोगे तो भी चल जाएगा. प्लस एक अच्छी अंडर आई क्रीम. अंडर आई क्रीम भी आप 1000 रुपीज़, 900,000 रुपीज़ की रेंज वाली क्रीम्स अच्छी होती है. ज़रूरी नहीं है आपने 5000 या 10,000 वाली ही लेनी है, तो दैट्स फाइन. There are some brands which are very desi Indian brands like A Vico Turmeric, which is age old. हाँ. And then there is Patanjali जिनकी अपनी अलग रेंज है. And then we have Lotus जो थोड़ा सा Chemical फैंसी plus, है. हाँ, 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 ठीक है. that's true. So are they good? They are good to some extent, like aloe vera gel is good. अच्छा. Plus अब जैसे बोरोलीन ले लो. बोरोलीन is a good moisturizer, but it has boric acid, so people may have irritability issues or something like that. Plus it is very comatogenic. तो depending on your skin and अगर आपको face पे लगाना है तो go for a good brands. Not Vico and Patanjali and नहीं, Lotus. नहीं. Okay. Lotus is coming with the skincare formulations right now. I don't know how. मैं अभी मैंने नहीं टेस्ट किया, but it is coming. Many brands are coming lately, like Lakme, L'Oreal. L'Oreal तो खैर है ही. They have range of products in them. But Lakme हो गया, फिर आपका ये Lotus हो गया, Pond's हो गया. So they are coming with the formulation. The problem with them is, what I feel is कि उनमें ना वो लोग फ्रेग्रेंस डाल देते हैं फॉर पीपल टू यूज, फील गुड. दैट्स अ फील गुड फैक्टर. तो वी डर्मैट्स डोंट रिकमेंड देम, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रेग्रेंस की वजह से फिर स्किन इरिटेबल होती है, सेंसिटिविटी इश्यूज होते हैं, एंड वी डोंट प्रिस्क्राइब दोज प्रोडक्ट्स. व्हाट अबाउट क्लीन अप और फेशियल्स इन द सैलून्स, कि कितना ऑफन होना चाहिए, एंड इज इट रियली हेल्पफुल अगर आपको अपना स्किन टाइटनिंग करना है या अगर wrinkles अवॉइड करने हैं, सो इज इट रियली हेल्पफुल? देखो, फेशियल्स आर वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग योर स्किन. They cannot change your skin. Like people see Hydra facial Instagram and they come with the expectations कि ये wrinkles remove हो जाएंगे within one sitting. That cannot be done. Those are filters. Okay. हाँ, ठीक है. तो अगर आप एक सलून फेशियल और एक मेडी फेशियल्स को कंपेयर करो, so those are very different. What happens in saloon facial and not in medi facials? 2 steps. One is scrubbing and one is bleaching. We don't advise them. As far as it is very gentle and it's good, then the cleanup is also good and facial is also good. Okay. And obviously the products which they are using for facials, that matters. And कितना often होना चाहिए? Once a month is fine. Once a month or once in 2 months, you can go for the facials to maintain your skin. All right. And what about laser hair reduction? Is it effective? Yes, it's very effective. It is 90 to 95% very, very effective. What is the right procedure and how long does the entire procedure takes? देखो, if you're going for a full body laser, at least 3 to 4 hours per session आपको निकालना पड़ता है. Okay. है ना? And you have to go once a month. And if you go to a good clinic which has good machine, तो आपको minimum मतलब 3 to 4 months time में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है. ठीक है. प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे चीप मशीन्स यूज होती हैं और फिर लोग सलून्स पे ज्यादा बिकॉज ऑफ. So how to identify कि इनकी machines अच्छी हैं नहीं? Because I have seen some success laser hair removals also, successful ones, but at the same time I have also seen people जिन्होंने face पे try किया and skin और ख़राब हो गई, पूरा pigmentation आ गया और फिर वो separately फिर उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है. एक्ने बहुत बढ़ गए, मतलब स्किन ने बहुत ख़राब रिएक्शन दिया ट्रीटमेंट का. देर आर पीपल, ऐसा नहीं है हर किसी को सूट भी नहीं करता लेज़र, बट हाँ 95% लोगों को कर जाता है. प्रॉब्लम विद द पीपल इज दे गो फॉर चीपर
alternatives. Okay. अभी तो इतना हो गया है कि 15,000 में 6 सेशन, people are arguing over that. But अगर आपकी मशीन अच्छी है, अगर आप क्योंकि AC is necessary, तो आप दे ही नहीं सकते. इतना तो आपका बजट ही नहीं बनता एक लेजर हेयर रिडक्शन में. सो यू शुड ऑलवेज सी दैट. प्लस अगर एक डॉमैट या प्लास्टिक सर्जन बेस्ड क्लिनिक है तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको बेटर ही मिलेगा, बिकॉज वी डोंट प्ले विद द चीपर ऑल्टरनेटिव्स की चाइनीज मशीन्स ले लो एंड कुछ भी कर दो, है ना. प्लस ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको लगे कि स्टाफ ट्रेन नहीं है तो प्लीज डोंट टेक फ्रॉम देयर. और हमेशा आजकल तो लोगों को ट्रायल भी मिल जाते हैं, तो विच इज़ गुड. Okay, so very quickly suggest 3 superfoods जो daily routine में हमें लेने चाहिए for good skin. Okay, 3 superfoods is high protein diet as we have already discussed. Then green leafy vegetables. Okay, and then fruits and fruits इससे like मेरी berries. skin, इन तीनों से मेरी skin glow करेगी. हाँ. For shiny and strong hair. हाँ. 3 superfoods for that. Then omega-3 fatty acids. वो किस में होते हैं? Omega-3 fatty acids आपके seeds में हो गए. Okay. And then fish में हो गए. Fish like salmon, fish and all. Then high protein diet. And apart from that, your green leafy vegetables. Again, जिसमें iron, zinc और ये minerals वगैरह होते हैं. मतलब skin and hair go hand in hand. Yeah, they go hand in hand. आप अगर अपना nutrition आप proper करोगे तो सब कुछ साथ में ही चलता है. Okay. So early signs of aging हमें लगता है कि सबसे पहले हमारे फेस पे शो होते हैं, बट इज इट ट्रू कि अर्ली साइंस ऑफ एजिंग आपके नेक और हैंड्स पे भी पहले शो करते हैं? यस, बिकॉज वी ऑफन नेग्लेक्ट आवर हैंड्स एंड नेक. हम फेस पे तो क्रीम्स और कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, बट हम नेक और हैंड्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं. इवन पीपल हैव स्टार्टेड पुटिंग द सनस्क्रीन्स नाउ, बट वो सिर्फ फेस पे लगाते हैं. दे फॉरगॉट टू पुट देयर सनस्क्रीन ऑन नेक एंड हैंड्स, बट दे आर मोर एक्सपोज्ड टू द सन. Okay, how to take care of nails? Nails after extensions. Yeah, particularly after extensions. See, I'm not a fan of extensions. मैं तो खुद भी after extensions also. And अगर मुझे extensions नहीं करानी तो मेरे healthy और long nails अगर मुझे चाहिए तो वो कैसे होंगे? एक तो आपको डाइट बहुत अच्छा लेना पड़ेगा, विच इज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, दूसरा एक्सटेंशंस में प्रॉब्लम है कि वो लोग आपके नेल्स को बहुत ज़्यादा फाइल करते हैं, बफ कर देते हैं. हाँ, बफ कर देते हैं. देन दे पुट अ ग्लू एंड फिर उसके ऊपर वो उसको स्टिक करते हैं. हाँ, स्टिक करते हैं. तो ऑब्वियसली आपके नेल को ब्रीथ करने का मौका ही नहीं मिलता. तो इफ़ यू वांट टू गो फॉर एक्सटेंशन ऑल्सो, लाइक आपने 1 मंथ कराया, देन 1 to 2 months का प्लीज उसको गैप दीजिए. वो तो देना ही पड़ता है ना, वो बचते ही नहीं है दोबारा करवाने लायक. हाँ, एग्जैक्टली. तो प्लीज उसको गैप दें एंड ऑलवेज पुट अ वैसलीन ड्यूरिंग दैट टाइम. आप नॉर्मल एक वैसलीन पेट्रोलियम जेली नाइट टाइम में अपने नेल्स पे ज़रूर उसको अप्लाई करें ताकि उसको हाइड्रेशन भी प्रोवाइड होता रहे. आर विटामिन ई कैप्सूल्स गुड फॉर एप्लीकेशन? मतलब अगर हम ऑयल में मिक्स करके नेल्स और हेयर, आर दे इफेक्टिव या इज इट जस्ट दे आर यूज्ड फॉर मेनली मॉइस्चराइजेशन. So if you are putting, there is no harm that will benefit you in the long run. And how good is aloe vera out of the plant? Aloe vera is good as long as you are not allergic to it. Okay, for both face and hair and everything. That gives a very good moisturization. Any other home remedies which gives good moisturization or good glow, or for tan removal? For tan removal, see, kacha doodh is good. But as long as it is not contaminated, because it has lactic acid in it. So if you put kacha doodh in the morning and put it for just 5 minutes and you wash your face, you'll see a very good hydrated skin. Okay. Then papaya masks are good. Okay. And apart from that, homemade things, aloe vera we have already discussed. Then colloidal oatmeals. Okay. That is also good. If you make a mask or paste out of it and put it over the face, that is very good for hydration. These days बहुत common है, especially on Instagram, social media, हर जगह हम देख रहे हैं ice dipping. You're dipping your face in a bowl full of ice cubes. So is it effective? It's effective for oily skin, for pores to reduce, but people, what mistake people do is they overwash their face, मतलब overdo it. Okay. Like daily वो लोग कर रहे हैं, which is not good. You can do once or twice a week, which is fine. So what is the difference between rubbing ice on your face and dipping your face in ice pool? That is more or less same only.
It's the same thing. तो जरूरी नहीं वो पूरे dramatically बोल No, में. no, no. That is the trend which celebrities have started. हाँ हाँ They need to start some trends now. What they are doing, people have to follow that. हाँ. तो वो आप simple ice cube भी हाँ. rub कर लोगे तो similar results Yeah, आएंगे. that no, similar. That is for minimizing the pores, and if you're putting a makeup after that, obviously that will look a flawless makeup. So it's good, but don't overdo like daily लोग कर रहे हैं, which is not good because it can disrupt your skin barrier. So once a week or twice a week, it's fine. What about juices? बहुत सारे जूस रेसिपीज आती हैं मॉर्निंग में. ABC juice. ABC juice, then there is this spinach and आंवला and lot of things डाल के वो green juice. फिर एक ऑरेंज वाला ऑरेंज कैरेट जूस. सो आर दे हेल्पफुल? बिकॉज रील्स तो ऐसे दिखाते हैं कि आप ये हैव दिस ग्लास ऑफ जूस एवरी मॉर्निंग एंड देन यूल हैव शाइनी हेयर, स्ट्रॉन्ग हेयर. देखो, हाउ इफेक्टिव आर दोस? देखो सिंपल टर्म्स में वो न्यूट्रिशन तो आपको प्रोवाइड कर ही रहा है, तो इंटरनली तो इट इज गिविंग सम इफेक्ट. बट इफ यू आर कंपेयरिंग लाइक पीपल आर कंपेयरिंग ABC जूस विद द रेटिनॉल सिरम्स एंड ऑल, दैट वोंट बी हेल्पफुल. अच्छा. है ना, वो उतना काम नहीं करता. उनका काम एक्सटर्नली बहुत अलग है, वो इंटरनली आपको जितना इफेक्ट देगा दैट इज टोटली डिफरेंट. तो मतलब दोनों तरफ हाँ. काम करना पड़ेगा. हाँ. इनसाइड एंड आउटसाइड वी हैव टू वर्क. Yes. What you are putting inside, it is reflected on the skin, and what you are applying, that is working on the skin. Okay, coming back to the teenage issue. कि teenage जो बच्चे होते हैं, we don't know what products to use on them, like what body wash and what face wash, whatever the adults are using, can they use that? Because now they cannot use those kids wala range which they used to use. So what products should they use? See, teenage should use the body washes and moisturizers. They should focus more on the hydrating the skin. They should not go with like AHA, BHAs and all. AHA, BHA is necessary for them unless they have a oily skin or you know, very acne prone skin. Then it matters. Like आप एक salicylic acid face wash use कर सकते हो. But overdoing things in that age will lead to a disrupted barrier, और उसकी वजह से फिर आगे life में consequences आएंगे ही आएंगे. Okay. So more focus is on hydration and protecting the skin with the sunscreen. That's it. And how important is oiling? ऑयलिंग वी डोंट एडवाइज. ऑयलिंग का काम है कंडीशनिंग करना, वो एक कंडीशन करता है आपके बालों को सिर्फ. तो वी डोंट एडवाइज ओवरनाइट ऑयलिंग, हम लोग नहीं प्रिस्क्राइब करते. तो वो जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है रात को चंपी करवाकर हफ्ते में 2 बार. इफ यू हैव ऑयली स्किन इट्स अ बिग नो नो, बिकॉज अगर आप ऐसे करोगे तो आपके एक्ने आएंगे ही आएंगे. दैट ऑयल विल कॉज द एक्ने. अगर आप हेड पे एक्ने ऑयल लगा रहे हो बहुत ज़्यादा, ओवरनाइट लगा रहे हो, तो फिर आपके फोरहेड पे एक्ने काफ़ी हद तक आएंगे. अच्छा. चांसेस होते हैं, ठीक है. बट अगर आपको ऑयलिंग करना है अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू वी डर्मैट्स, तो आप नहाने से 1 घंटा पहले आप ऑयलिंग करें एंड देन वॉश इट विद शैम्पूज. Okay. Can you suggest some good oils that we can use? ऑयल में लेटली प्लेन कोकोनट ऑयल इज गुड फॉर योर हेयर. अगर आप उसको एज अ कंडीशनर भी यूज़ करो, देन उसके अलावा आप उसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स भी मिला सकते हो. वो आपके थोड़ा हेयर फॉल या हेयर ग्रोथ में हेल्प कर सकता है. ठीक है. ऑल्सो रोजमेरी ऑयल which is similar, which has studies that they are similar to minoxidil 2%. So that will help in increasing the hair growth. ठीक है. और विंटर्स में यूजुअली बहुत डैंड्रफ हो जाता है स्कैल्प पे, उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? एंटी डैंड्रफ शैम्पूज. They are useless. No, नहीं, ऐसा नहीं है. If that is useless, you need a good anti dandruff shampoo. Okay. There are many, you know, dandruff anti dandruff shampoos. तो कुछ डर्मैट स्पेशल शैम्पूज हैं हाँ मेडिकेटेड? हाँ, like there are many ingredients like ketoconazole, luliconazole with salicylic acid, then coal tar and salicylic acid. Can you name some anti-dandruff shampoos? Yeah, one is Keraglo AD, then scalp shampoo, then Lupizol ZS, then cycloperox olamine करके भी शैम्पूज आते हैं. तो बहुत सारे. तो सिर्फ शैम्पू से डैंड्रफ चला जाता है? चले जाते हैं. अगर वो सिर्फ शैम्पू से नहीं जा रहा तो कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. तो मे बी सम यू नो ओरल मेडिकेशन एंड सम लोशंस अपार्ट फ्रॉम दैट कैन बी एडवाइज्ड, एंटी फंगल. What about oily scalp? Like there are people who have oil, the scalp is oily but the hair are very dry and dull.
तो उसके लिए क्या शैम्पूज रहते हैं या क्या उनको डिफरेंट करना चाहिए? उनको डिफरेंट, सबसे पहले अगर उनका ऑयली स्कैल्प है तो ऑयलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज देयर बॉडी इज़ डूइंग दैट फॉर देम। तो उनको गुड क्लेंजर्स, मेनली सल्फेट फ्री का आजकल जैसे चल गया है कि लोगों को सल्फेट फ्री शैम्पूज ही चाहिए, विच इज़, अगर ऑयली स्कैल्प है आपका तो आप सल्फेट वाले शैम्पूज यूज़ कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द ऑयल। प्लस देर आर मैनी शैम्पूज दैट कैन कंट्रोल द ऑयल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे शैम्पू नहीं कवर कर सकता, तो फिर आजकल स्कैल्प स्क्रब्स भी आते हैं which you can apply before the bath, and that will also help in reducing the dandruff also and oiliness. स्कैल्प स्क्रब? Scrubs, ओके, तो मतलब उनको लगा के छोड़ दो and then wash it off after 1 hour. ऑल राइट। एंड देर आर मेनी पीपल जिनको ये लगता है कि हम कंडीशनर नहीं लगाएंगे बालों में, वो तो केमिकल है, उनको आप कैसे समझाओगे? उनको मैं समझाती हूँ, अगर आपको कंडीशनर नहीं लगाना तो एटलीस्ट पुट अ हेयर मास्क वंस अ वीक, विच इज़ ऑल्सो फाइन, कि वो बालों को प्रोटेक्ट करता है। और देखो, शैम्पू का काम है क्लीन करना, उसने सारे सर्फेक्टेंट्स और सब चीज़ों को रिमूव कर दिया। बट उन कंडीशनर ना लगाने का रीज़न ये है कि कंडीशनर से बाल झड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन? लोगों को समझाना हर चीज़ में मुश्किल है। इफ़ दे आर प्रीजुड्यूस्ड विद कि ये चीज़ होना है और मुझे ये नहीं करना है, तो वो नहीं करेंगे, नो मैटर हाउ मच यू एक्सप्लेन टू देम। तो हमारा काम है उनको एक्सप्लेन करना, अगर उनको ठीक लगता है तो वो फॉलो करेंगे। कैन यू सजेस्ट सम गुड हेयर मास्क? These days I'm liking that FCL का hair repair mask, it's a very good mask. Okay. Then K18 का एक molecular leave-in mask आता है, वो भी बहुत अच्छा So है। you apply it only on the On the ends, ends. not on the roots? No. Okay. That's a very good mask. These two are my favorite. Apart from that, for लोग जिनके बहुत फ्रिजी हेयर्स होते हैं, बहुत उड़े उड़े बाल, लाइक हमारी मम्मियों के आपने देखे होंगे, बिकॉज दे डोंट कंडीशनर एंड शैम्पूज मच। मैं ज्यादातर उन्हीं जनरेशन के लिए मेरा ये क्वेश्चन है, मम्मा जनरेशन, बिकॉज उनका यही होता है कि कंडीशनर तो केमिकल होता है, इससे बाल झड़ते हैं। मेरे को एक प्रोडक्ट आपने सुना होगा, मिनिमलिस्ट का मैलिक एसिड रिपेयर कॉम्प्लेक्स, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। ओके, दैट मैलिक एसिड, अगर आप उसको नहाने से 1 घंटा पहले उसको बालों में जो एंड्स हैं उस पे लगाते हो, एंड देन यू रूट्स पे नहीं, एंड्स पे, एंड देन यू वॉश योर हेयर, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। मतलब कंटिन्यूस यूजेज फॉर 1 month एंड यू सी कि उनके बाल जो है ना, जो उड़े उड़े रहते हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं ऐसे जो ये कंप्लेन करते हैं, सो आई यूजुअली एडवाइज देम कि आप वो लेके, उससे वो काफ़ी बेटर हो जाता है। अच्छा, वो बेसिकली सॉफ्ट कर देता है। सॉफ्टनेस करता है। बहुत रेयर एका दुक्का लोग होते हैं जिनको नहीं समझ में आता या जिनको नहीं सूट करता, लेकिन 90 to 95% लोगों को आराम से सूट करता है। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, जिस चीज़ से बहुत सारी लेडीज ऑब्सेस्ड है, कोलैजन। हाँ, कोलैजन बूस्टर्स, कोलैजन सप्लीमेंट्स, सो उसका क्या रोल है, किस टाइम पर शुरू करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? आई यूजुअली से टू माई पेशेंट्स, कोलैजन आप तब लो जब आप सारी चीज़ों से तृप्त हो चुके हो, क्योंकि कोलैजन इज़ फॉर मेंटेनेंस, एंड कोलैजन पाउडर्स और कोलैजन सप्लीमेंट्स का रोल इतना ज़्यादा नहीं होता। मतलब अगर कोई पेशेंट मेरे पास एंटी एजिंग के लिए आ रहा है एंड आई एम जस्ट गिविंग कोलैजन टू देम, तो उनको कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा, है ना, बिकॉज अगर आप अपना स्किन केयर प्रॉपर कर रहे हो, आपके न्यूट्रिशन सब कुछ ठीक है, तो और पैसा भी है क्योंकि वो कॉस्टली भी आते हैं, ठीक है ना, तो आप कोलैजन लो, दैट्स अ पार्ट ऑफ द रूटीन, ठीक है ना। हाँ, वो आपकी बॉडी में हेल्प करेगा, बट वो बहुत मिनिमल हेल्प करता है, बिकॉज कोलैजन मॉलिक्यूल्स बहुत लार्ज होते हैं, वो बॉडी में इतनी जल्दी एंटर नहीं कर पाते। तो आप बेसिक चीज़ों पे काम करें जो आपका कोलैजन जनरेशन बढ़ाता है। ओके, एंड व्हाट इज द बेस्ट टाइम और बेस्ट वे टू टेक द कोलैजन सप्लीमेंट? Any time during the day you can have it after meal or before meal, you can have it any time of the day. And what is the right age to start collagen? After 35 or 30 you can start. ये भी जल्दी नहीं है? नहीं। I told you ना, अगर आप हर चीज़ों से तृप्त हो चुके हो तो आप कोलैजन स्टार्ट कर सकते हो। तो जो 40-45 तक नहीं ले रहे, क्या वो लेट है? वो लेट है एक्चुअली में। एक्चुअली जो 40-45 वाली फीमेल्स है ना, अभी उन्होंने सनस्क्रीन भी आई थिंक 5-10 सालों से स्टार्ट किया होगा। अच्छा, तो ऑब्वियसली दे आर लेट, बट हाँ, बेटर द अर्ली, जब भी आपको जब उठो तभी सवेरा।
तो ठीक है, मतलब ना से तो ना हाँ। से कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. दैट विल ऑब्वियसली हेल्प देम इन द लॉन्ग रन, बिकॉज वो बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं दिखाता. ऐसा नहीं है कि हमने आज से लेना स्टार्ट करा और 2-3 महीने में हमें रिजल्ट दिखाएगा. इट टेक्स इट्स ओन टाइम. Okay. So before leaving, before ending, I would like you to just mention that what are the 2 or 3 common mistakes जो आपके सारे patients कर रहे हैं कि ये जो भी आता है ये गलती तो वो करता ही है. जिन्होंने कभी डर्मैट विजिट नहीं किया तो इन देयर डेली लाइफ ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो ज़्यादातर लोग करते हैं? One common mistakes which people are doing these days, influencers को देख के प्रोडक्ट्स मंगाते हैं. Okay. और बहुत महंगे प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, है ना, एंड दैट रून देयर स्किन. ठीक है, तो वन प्लीज स्टॉप दैट. उसके कोई फायदा नहीं होने वाला. ठीक है. आप अपनी समझ से प्रोडक्ट्स खरीदो या फिर अपने डॉमैट से जाके मिलके उनकी सलाह से प्रोडक्ट्स खरीदें. तो दिस इज द नंबर 1 मिस्टेक विच पीपल आर डूइंग. सेकेंड मिस्टेक इज people fall more easily on what they are seen on Instagram, like procedures. Procedures देख के वो decide कर लेते हैं उन्हें ये कराना है, which should not be done. You go to a doctor, आप उनसे discuss करें आपके लिए क्या best है ना. मतलब अगर patient को hair fall है, वो अगर एक्सोसोम देखकर आ रहा है तो उसको बस एक्सोसोम ही कराना है या हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना है. बट क्या पता उसका बिना हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट आ जाए. है ना. तो पीपल शुड स्टॉप जजिंग डॉक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ वो आके बता देते हैं डॉक्टर हमें ये लिख दो, हमारे ये कर दो, हमें एंटी एजिंग में बोटॉक्स कराना है, पता नहीं है बोटॉक्स होता क्या है. सो दे शुड स्टॉप फॉलोइंग सोशल मीडिया ब्लाइंडली. ओके, ऑलराइट. तो मतलब जितना पैसा वो ब्लाइंडली प्रोडक्ट्स इन्फ्लुएंसर्स से इन्फ्लुएंस होकर खरीदने में लगा रहे हैं उतने में तो वो डर्मैट से एक्चुअली ओरिजिनल ओपिनियन ले सकते हैं. जेन्युइन ओपिनियन आप डर्मैट से ले सकते हैं. प्रॉब्लम है ना, पीपल डोंट वांट टू पे डॉक्टर्स. हाँ. वो पैसा बचाने के चक्कर में दे आर पेइंग मोर टू द, मतलब उसके बाद भी उन्हें डॉक्टर्स के पास ही आना है जब उनकी स्किन खराब हो जाएगी. इट हैपेंस डेली. वो होता है, मतलब रोज आते हैं ऐसे पेशेंट्स मेरे साथ. Right. And for the brides to be, any special tips for the glow for the D-Day? Have a good nutrition, have a good sleep, stress-free life, और you can plan procedures according to आपके wedding में कितने days बचे हैं. Like 6 months before you can plan your laser hair reduction. Then 1 month before you can plan skin boosters. If you are planning to get any botox or fillers done, then you can have 1 to 2 months before. Okay. All right. And thank you very much for coming on the show. Thank you. The entire episode, जितनी भी चीज़ें आपने share की, they were very, very insightful and I hope हमारे viewers को भी बहुत helpful रहे होंगे. So everyone, please indulge in some self-care, be kind to yourself and stop doom scrolling and visit the dermat for the correct and the genuine opinion. That's all for today. Do let us know if this episode was helpful. And I'll see you in the next episode. Till then, keep spreading love.